Hi and welcome to the online class of English. Today I am going to explain question answers from poem Animals. I have explained the poem in my last lecture. Today we will discuss the question based on the extracts. First extract is I think I could turn and live with animals. They are so pleasant and self-contained. I stand and look at them long and long. I think I could turn means poet क्या सोचता है कि मैं टर्न कर जाऊं कहाँ किसकी तरफ एनिमल्स की तरफ टर्न इनटू एनिमल्स ठीक है दे आर सो प्लेसिड क्योंकि वो बहुत प्लेसिड मीन्स सिंपल होते हैं सेल्फ कंटेन्ड मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं अंडरस्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मैं उनके साथ पढ़ूं और उनको अच्छे से देखूं नेम द पोइट दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पोइम ठीक है नेम द पोइम एंड द पोइट the name of the poem is animals and the name of the poet is Walt Whitman. The name of the poem is Animals and the name of the poet is Walt Whitman. This extract is taken from the poem Animals and the poem is written by Walt Whitman. Who wrote the poem and from which poem this extract is taken from? Where can this kind of question can be there? ठीक है, name the poem and name the poet. There can be simple question. The name of the poem is Animals. The name of the poet is Walt Whitman. Now this extract is taken from the poem Animals that is written by Walt Whitman. What does the poet want to turn into? What does the poet want to turn into? The poet wants to turn into animals. The poet wants to turn into animals. What does the poet say about the animals? The poet says that animals remain calm and contented. Placed means simple or calm and self-contained means happy. Okay, the poet says that animals remain calm and contented. The poet says that animals remain calm and contented. Where could the poet turn from? Where could the poet turn from? The poet could turn from the company of men. The poet could turn from the company of the men. Which word in extract mean calm? Which word in extract mean calm? There can be word mean simple. Which word in the poem means calm or simple हो सकता है यहाँ पे ठीक है The word is placid. The word is placid. Which mean the word calm placid. ठीक है poem के बीच में आंसर उसका आएगा जो वर्ड आपको आएगा बाहर से आएगा उसका मीनिंग जो उस पॉइंट के बीच में होगा ठीक है द काम मीन्स प्लेस इट नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज they don't sweat and whine about their condition they don't lie awake in the dark and weep for their sins they don't make me sick discussing their duty to God means they don't sweat they don't work hard and don't whine they don't cry for their condition ठीक है they don't work hard and they means they don't sweat means अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो sweat आएगा ना and whine means cry about their condition मेरे पास ये है वो है ऐसे के लिए वो कभी नहीं रोते कभी पछताते नहीं है they don't lie awake means वो पूरी पूरी रात को जाग के मीन्स अपने जो पाप उन्होंने किए होते हैं बैड डीड्स उन्होंने किए होते हैं उसके लिए पछताते नहीं हैं ठीक है दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड ऐसा भी नहीं है कि मुझे अपनी ड्यूटी टू गॉड के लिए मुझे मीन्स वो परेशान करेंगी इरिटेट करेंगी सिक मीन्स इन दिस पोएम सिक मीन्स इरिटेट What does the word they here refer to? They here refer to animals. In this poem, they refer to animals. The word they here refers to animals. They pronoun used for the animals. Okay. Where do humans lie awake in the dark? They don't lie awake in the dark and weep for their sins. Means हम लोग रात को जागते हैं ना humans रात को जागते हैं सोते हैं और रोते हैं ठीक है Why do humans lie awake in the dark? Humans lie awake in the dark weeping for their sins. Humans lie awake in the dark, weeping for their sins. What do humans do about their condition? What do humans do about their condition? They don't sweat, whine. ठीक है? It means humans sweat करते हैं, humans whine करते हैं. They sweat and whine about their conditions. Means humans sweat
and whine about their conditions. Animals don't sweat, but humans sweat. Animals don't whine, humans whine. Animals don't lie awake, but humans lie awake. ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनिमल्स के अबाउट है, व्हाट डज द वर्ड दे रिफर टू? दे रिफर टू एनिमल्स हियर, ठीक है। बट व्हाई डू ह्यूमंस, जहाँ पे ह्यूमंस का पूछा बच्चे, एनिमल्स का नहीं पूछा। व्हाई डू ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क? इट मीन्स एनिमल्स तो डोंट अवेक है ना, तो ह्यूमंस अवेक करते होंगे। ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क वीपिंग फॉर देयर सिंस। दे, what do humans do about their conditions? They sweat and whine about their conditions. What gives the poet sick feelings? They don't make me sick. Discussing their duty to God. ठीक है, what gives poet a sick feelings? Any discussion about their duty to God gives the poet a sick feeling. Any discussion about duty to God gives the poet a sick feeling. Which word is opposite to good deeds? Opposite to good deeds means bad deeds क्या होते हैं? Sins. तो opposite of good deeds क्या होगा? Sins. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived the thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. What does the poet call a mania here? What does the poet call a mania here? The habit of owning things. Mania क्या होता है बच्चे? Mania means madness. Mania means madness, पागलपन जो होता है, ठीक है। What does the poet call a mania here? Madness किसको बोलते हैं? The habit of owning things by humans has been called a mania here. The habit of owning things by the humans has been called a mania. How are the humans not dissatisfied? Since animals do not have desire to own anything, therefore they are never dissatisfied. How are the animals not dissatisfied? Animals dissatisfied क्यों नहीं होते? Since animals don't have desire to own anything, एनिमल्स की डिजायर ही नहीं होती कुछ ऑन करने के लिए, उनके पास, उनको नहीं होता कि मेरे पास ये अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, गोल्ड चाहिए, ये वो, ठीक है। एनिमल्स की ऐसी कोई डिजायर नहीं होती। दैट इज वाई देयरफॉर दे आर नेवर डिससेटिस्फाइड, इसीलिए वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है। उनकी कोई डिजायर नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस हर्ट द मैन है ना, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं, इसीलिए वो कभी हर्ट नहीं होती। हु डज द अनदर रिफर हेयर? ठीक है, नो वन, सॉरी, नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट वन नीड्स टू अनदर, ठीक है। वन यहाँ पे एनिमल के लिए कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के आगे नीड्स नहीं करता। व्हाट डज द अनदर रिफर्स टू हियर? अनदर किसके लिए यूज किया गया? अनदर रिफर्स टू अदर एनिमल, ठीक है। वन एनिमल, नॉट वन नीड्स टू अनदर मीन्स वन एनिमल नेवर नीड्स टू अदर एनिमल, ठीक है। अनदर रिफर्स टू अदर एनिमल हियर। Who is the poet referring to that lived thousands of years ago? The poet is referring to the ancestors of human beings who lived thousands of years ago. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ह्यूमन का जो बर्थ किन से हुआ? एप्स से हुआ, ठीक है। एप्स जो एनिमल्स हैं, तो जो एंसेस्टर्स हैं, ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन है? एप्स हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मीन्स जो एप्स हैं, who lived 1000 years ago, मीन्स बहुत टाइम पहले वहां पे रहते थे, उनको रिफर कर रहे हैं पोइट। What does kneel symbolize here? Kneel symbolize here to praying in the, अब हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पे नील करते हैं ना, घुटने टेकते हैं, तो क्या होता है? प्रे करते हैं हम, ठीक है, गॉड को प्रे करते हैं। देन वी बेंड डाउन, है ना। नील इज सिंबॉलिक टू द प्रेइंग इन अबव। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself and evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Explain the line, they bring me tokens of myself.
explain the line. They bring me tokens of myself. The poet here means that animals remind him of true values of human nature as such kindness and innocence. Human nature क्या होता है? Kindness, kind towards others है ना, और innocence. Humans के जो नेचर होते थे पहले, अब हम सेल्फिश हो चुके हैं, अब हमें मीन्स काइंड हार्टेड नहीं रहे, अब हम अपने लिए सोचते हैं, प्रॉपर्टी के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बिफोर दिस टाइम क्या था, ह्यूमंस के जो नेचर्स होते थे, ह्यूमंस के जो टोकन्स होते थे, काइंडनेस एंड इनोसेंस जो थी, काइंडनेस इनोसेंस जो ह्यूमन टोकन्स होते थे, तो ये क्या है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जो एनिमल्स हैं जो मुझे रिमाइंड करवाते हैं जो ट्रू वैल्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर सच एज काइंडनेस एंड इनोसेंस, जो मेरी ट्रू जो वैल्यूज हैं वो रिमाइंड करवा रहे हैं, ठीक है, मुझे याद दिलवा रहे हैं कि मेरे एक्चुअल वैल्यूज क्या है मेरी, ठीक है, एक्चुअल ह्यूमन नेचर क्या है, कि हमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कभी किसी दूसरे के पीछे भागना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए, कभी पाप नहीं करने चाहिए, सेंस नहीं करने चाहिए, तो ऐसा ही हमारा नेचर होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो एनिमल्स हैं उसे रिमाइंड करवा रही हैं। बट सिमिलरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स में एंड एनिमल्स के बीच में से कौन सी सिमिलरिटीज हैं? द पोएट फाइंड्स दैट एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स डोंट ट्रैवल, ठीक है, एनिमल्स जो हमारे जैसे कभी ट्रेवल नहीं करते, कभी उनको दुख नहीं होता हमारे जैसे, अदर्स अनलेस दे आर कंपेल्ड दे आर इक्वली काइंड एंड इनोसेंट, ठीक है, वो कंपेल नहीं होते कभी किसी दूसरे को देख के, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके पास इतना पैसा मेरे पास भी चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ी है मेरे पास भी अच्छी गाड़ी चाहिए, एनिमल्स को ऐसा कभी नहीं होता, और किसी दूसरे को देख के वो कभी परेशान नहीं होते कि उसके पास ज़्यादा पैसा मुझे पास भी मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरी भी होनी चाहिए, एनिमल्स ऐसा कभी नहीं करते, एंड दे इक्वली काइंड एंड इनोसेंट, वो काइंड भी होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट क्या, आगे क्या लिखा है, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वेरी ह्यूज टाइम्स अगो और नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, व्हाट डज द पोएट वॉन्डर, आई वॉन्डर लिखा ना, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, what does the poet wonder, the poet wonders whether the animals get all their virtues from humans, ठीक है, कि जो उसकी गुड क्वालिटीज हैं ह्यूमन से लिए एनिमल्स ने, ठीक है। why does the poet say that negligently dropped them, poet believes that animals got their values from humans while they lost them long time ago and have forgotten about it। अभी क्या है कि हम बिजी हैं अपने मीन्स पैसा कमाने में, भाग दौड़ में, ऐसा चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बिजीएस्ट, तो हम अपनी बिजी लाइफ में के लगता है कि मैंने सारे जो ह्यूमन बीइंग्स ने जो टोकन्स हैं जो ये फेंक दिए होंगे, कभी गिर गए होंगे या कहीं छोड़ दिए होंगे, तो जो एनिमल्स हैं जी हमसे अडॉप्ट कर गए होंगे, हमने छोड़ दिए होंगे, हमने फेंक दिए होंगे कभी गलती से और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए होंगे, ठीक है। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स नेग्लिजेंट। Okay, Vijay, thanks. Have a nice day. I hope you must understand all the questions. Thanks.